Hello students, welcome to the second video lecture on the magnetic effect of the current. In a first video lecture, we discussed about the Oersted experiment Oersted's observation regarding the current carrying conductor produces a magnetic field around it. After that, we discussed about the direction of the magnetic field using the right hand thumb rule, right hand or Maxwell's corkscrew rule. These rules are discussed to find out the direction of the magnetic field produced by the current carrying conductor. After that, we discuss about the Biot-Savart law, and Biot-Savart law is the quantity of the magnetic field, the amount of the magnetic field produced by the straight current carrying conductor. After that, we discuss about the application of the Biot-Savart law, that a magnetic field due to the center of the circular coil, magnetic field at the center of circular coil, and magnetic field on the axis of a circular coil. And in this unit we are going to discuss about the another law. This is the Ampere-Circuital law used to find out the magnetic field due to the current carrying conductor. And two application of this law is a magnetic field due to the straight solenoid and magnetic field due to the toroidal solenoid. So this is the short application of this or small application of this Ampere-Circuital law. Let us start how is the Ampere-Circuital law. First, I will give the introduction about this Ampere-Circuital law. The Ampere-Circuital law. Circuital law. When this is the current carrying conductor carrying the current I, suppose this is the XY is the current carrying conductor, and due to this current carrying conductor, magnetic field is produced around this current carrying conductor. So to apply the Ampere-Circuital law, this is consider one circular loop around the current carrying conductor, and through that loop current I is passes, and the radius of this loop, suppose it is R is the radius. This is a closed loop. According to the right hand thumb rule, when we hold this straight current carrying conductor in our right palm, holding these four fingers curved around the conductor, keeping the thumb is erect in the direction of the current, this is the direction of current, then magnetic field along this is in concentric circles, and when current is in upward direction, magnetic field it is a anti-clockwise, this is clockwise, and when it is in a downward direction it is a anti-clockwise. We discuss about the right hand thumb rule and direction of magnetic field due to the straight current carrying conductor. In this law, this is considered a loop, and this is the magnetic field, direction of magnetic field, it is this is the anti-clockwise direction. Okay, अब यहाँ देखो ये this statement is, I am writing this statement, Ampere-Circuital law. Statement is the line integral of magnetic field in a closed loop threading current I through the loop is mu 0 times, this is the permeability, mu 0 times the total current passes through the loop.
Okay, this is the in a closed loop, this line integration over a closed loop. This is the symbol, it is a closed loop. BDL equal to mu 0 times total current passes. This is known as a Ampere circular law. So integration of over a closed loop of a magnetic field, and this dl is a small length element. अगर यहाँ एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट देखेंगे तो हम यहाँ लेंगे ये, this is the dl, this is the direction of dl and b, both are in the same direction. So b dl equal to b dl cos of a कितना आएगा 0 डिग्री. So this is the b dl. This theta equal to 0, both b and dl in a same direction, both bl and dl same direction. So theta equal to 0. This is the meaning of. अब यहाँ देखो, this is a integration over a closed loop bdl equal to mu 0 times the total current passes through this circular, this total current passes through the threading through this closed loop. This is known as a Ampere circular law. Line integral of magnetic field in a closed loop, threading current I through the loop is mu 0 times, okay, mu 0 times the total current passes through this loop. This is known as a Ampere circular law. Or we'll more discuss in the next slide. This Ampere circular law is okay. So the statement is line integral of a BDL, this integration of a BDL for the closed curve is equal to mu 0 times, loop भी बोलेंगे यहाँ, loop भी बोल सकते हैं, in a closed loop equal to mu 0 times the net current I threading through the area bounded by the curve loop. So this is the statement of the Ampere circular law. So this is BDL integration of over the closed loop, line integration of a closed loop BDL equal to mu 0 times the total current passes through this. This is the conductor carrying the current I, and this is the direction of the magnetic field around the current carrying conductor, as we discussed about earlier using the right hand thumb rule. So let us discuss about what is the proof, how to say proof for this Ampere circular law. This is the current passes through this in a perpendicular to the direction. मान लो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू स्क्रीन के डायरेक्शन में करंट आ रहा है, दिस इज द आउटवर्ड डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस इज द डॉट इंडिकेट द मैग्नेटिक आउटवर्ड डायरेक्शन. तो ये करंट, दिस मैग्नेटिक फील्ड इन ए लूप, closed loop which is selected, and d edge is a small elements taken. This is the direction of magnetic field. So dl and magnetic field is the same direction. Magnetic field is tangent to the circle. Dl also, the small element is taken over this loop, and so the bdl equal to line integration over the closed loop. Bdl equal to angle between the b and dl is a 0. So this is cos 0 is a cos 0 degree equal to 1. So this taken as a integration of a BDL. मैग्नेटिक फील्ड ओवर द वन लूप, एक अगर एक रेडियस r एक कंटिन्यूस लूप है तो इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, इसीलिए इसको बाहर लिया, दिस टर्म इज टेकन आउटसाइड. सो दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज लूप इनटू dl, ये पार्ट बच गया. तो क्लोज लूप क्या हो गया थे b, और दिस इज द इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप dl इक्वल टू, मतलब कितना है ये, दिस इज द 2 pi r circumference of the circle, total length of a this loop, total length of the loop is a 2 pi r. So this equal to mu 0 times I divided by 2 pi r. अब यहाँ देखो, this is equal to what is the magnetic field at the center of this circular coil of a radius r. The magnetic field
हमने पढ़े पहले एप्लीकेशन में पढ़ा बायोट शॉर्ट लॉ लगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप ऑफ रेडियस r is b equal to mu 0 times I divided by 2 pi into r। तो ये हमने पढ़ा है पहले की तो, और वो वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ रखा, दिस b is equal to mu 0 I 2 pi r। so this is the magnetic field at the center of a this coil। ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया इसकी जगह, तो ये आएगा mu 0 I डिवाइड बाई 2 pi r इंटू ये पाई आर, दिस विल गेट कैंसिल। तो क्या आ गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए ओवर ए क्लोज लूप बी डी एल इक्वल टू मी 0 टाइम्स आई। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ ए एम्पियर सर्किटल लॉ। आसान है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार देख लीजिए। देखो यहाँ, सो दिस इज ए प्रूफ फॉर दिस, दोबारा समझाते इसको। So this is line integral over a closed loop BDL equal to mu 0 times I. This is the Ampere circuital law. For this a closed loop, suppose this a dot indicates the current direction is a towards us. This is the direction, current conductor is a perpendicular to the screen and it is a outward direction. Then magnetic field produced around this current carrying conductor in a, this a circular direction and direction of this B in this way. This is direction of a B, and over the B this is small element DL is taken। अगर यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे DL, तो and R is the radius of the loop, तो BL and ये they are in the same direction, so B DL cos of a क्या आएगा 0। so this equal to B DL। और मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप के ऊपर कि ये कैसे जैसे तो परफेक्ट सर्कल, तो इसके ऊपर क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल रहेगा, इसीलिए दिस टर्म इज ए कांस्टेंट इज टेकन आउट, सो दिस ए DL। सो टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर लूप B इनटू दिस इज द कितना आएगा, टोटल लेंथ कितना सर्कुलर लूप का, circumference, so this is 2 pi B 2 pi R। and magnetic field at center of loop, this B is equal to mu 0 I divided by 2 pi R। ये हमने पहले इसमें पढ़ा था कि इसमें बायोट शॉर्ट लॉ का एप्लीकेशन में, तो वही वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू क्या लिखे फिर, इससे BDL इक्वल टू क्या चलता, दिस B का वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो ये आएगा mu 0 I डिवाइड बाई 2 पाई R, ये B का वैल्यू हो गया, और ये दिस इज द 2 पाई R, तो 2 पाई R गेट कैंसिल, तो बचा हुआ टर्म हो गया mu 0 I। सो दिस इक्वल टू क्या आ गया फाइनली, BDL दिस इक्वल टू mu 0 into I। दिस इज द प्रूफ ऑफ ए एम्पियर सर्किटल लॉ। The next slide। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस ए सोलेनोइड। देन हम इसके एक एप्लीकेशन देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनोइड, ओके, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर circuital law। magnetic field due to a long solenoid।
सोलिनॉइड क्या होता है? दिस इज a helical spring like structure. This is the helical spring like structure, this known as a solenoid. ओके, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको क्योंकि बाद में प्रूफ की लिखना है. This is a solid energy. This is the helical structure, helical spring like a structure, or this known as a solenoid. This is the solenoid, and in this solenoid, when current I passes through this solenoid, current I passes through this solenoid, and this is also the current I. So current passes in a, किस डायरेक्शन से करंट जा रहा है ये? अगर ऐसे देखेंगे दिस इज अ क्लॉकवाइज, मतलब इट फॉर्म द एस पोल. यहाँ ऐसा अगर हम देखेंगे ये क्लॉकवाइज है, एस पोल यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ कितना अपोजिट इसका एन हो जाएगा. सो द करंट पासेस इन दिस वे थ्रू दिस सोलिनॉइड इज ए आई, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड. ये अंदर कितना सोलिनॉइड की और ये सोलिनॉइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. This is a simple and easy and important also. This is the very this part having a very wide application in the रिले सिस्टम. ये सब कॉइल्स यूज़ करते हैं, उसमें कितना करंट पास होता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये सब स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है. सो सॉलिन, व्हाट इज द सोलिनॉइड? सोलिनॉइड हैविंग ए हेलिकल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, having a number of turns of the copper wire or conductor is a wounded around in the width, having a this closely wound. They are close, turns are very close, and n is the, suppose n is the number of turns per unit length, and n is the number of turns per unit length, and I is the current passes through this a solenoid. And each turn having a this I is the current passes through the solenoid, and to apply the solenoid यहाँ एक लूप कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि हमने वहाँ लाइन, उसका क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप. अगर इसको क्लोज लूप कंसिडर करेंगे तो हम यहाँ एक रेक्टेंगुलर क्लोज लूप लेंगे. दिस इज इन दिस फॉर्म ऑफ, इस तरीके से. तो ये एक रेक्टेंगुलर क्लोज लूप लिया, इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है. वी कैन राइट दिस पी क्यू आर और ये यस. We selected one closed loop, and now we can apply the Ampere circuital law over the closed loop. So this equal to B dl equal to the line integral of magnetic field over a closed loop B dl equal to, we can take this, there are the three parts of this one, मतलब four sides of this rectangle. We can take this, instead of closed loop we can take the first PQ B dl प्लस दूसरा लूप QR B dl प्लस RS B dl plus this is the SP B dl. So this is the magnetic field due to this PQ, magnetic field due to the QR, magnetic field due to the RS, and magnetic field due to the ESP. This is splitted into this because we have taken the rectangle. क्या लिया? रेक्टेंगल लिया, तो हर एक का साइड का कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालेंगे. अब यहाँ यानी सोलिनॉइड magnetic field outside
दिस मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 0। आउटसाइड क्या होता है, 0 होता है, और एट द एंड ऑफ ए सोलिनॉइड इट इज ए हाफ। कितना रहेगा, हाफ। और यहाँ देखेंगे अगर इनसाइड द सोलिनॉइड, इनसाइड द सोलिनॉइड मतलब ये अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनसाइड द सोलिनॉइड, इनसाइड इट इज ए मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। कैसा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज ए यूनिफॉर्म। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अगर ऐसा ये होता है तो हम क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे इसमें? सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द एस पोल, क्योंकि ये कैसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है इस साइड में, दिस इज द क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, तो ये एस पोल है, और ये एस पोल है, और तो ये यहाँ एस पोल फॉर्म होगा, तो इस साइड एन, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट हमेशा कैसे दिखता है, एस टू एन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड बी। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये अप्लाई करेंगे यहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट। अब यहाँ देखो, we can take the another color, okay, the direction of the magnet for this, the again we can write this BDL equal to, पहला क्या था, BDL PQ plus B dot DL, और दूसरा क्या है QR और प्लस QR RS BDL प्लस दिस इज द ESP BDL। अगर ये इस तरीके से दिया है तो अब यहाँ देखो B और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और लेंथ का डायरेक्शन सेम है, तो इसके लिए हम लिखेंगे BDL इक्वल टू फर्स्ट PQ के लिए क्या है, लेंथ DL एंड B आर द सेम डायरेक्शन, सो दिस is BDL cos ऑफ ए 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, थीटा इक्वल टू 0, प्लस इन द पार्ट ऑफ दिस QR मतलब ये लेंथ एलिमेंट ये डायरेक्शन में हो गया, दिस इज द DL, और B क्या है, ये डायरेक्शन में हो गया, this is the DL or B, angle between them is a 90 degree, so this is a BDL cos of a 90 degree, plus QR क्या है, outside this magnetic field is 0, so मैं यहाँ 0 लिख रहा हूँ into DL, no problem, plus SP again यहाँ 90 डिग्री होता है, so this is BDL cos of a क्या आएगा 90, तो ये 90 आ जाएगा। तो क्या बचता है, देखो वो बचा हुआ टर्म्स लिखते हैं, लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज लूप BDL इक्वल टू, ये तो 0 होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ओनली दिस टर्म्स इज रिमेन BDL, क्या रहेगा BDL cos 0 इज ए 1, दिस वैल्यू इज 1, सो दिस इक्वल टू B क्या हो गया, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म लिखा है मैंने, ये तो इनसाइड इट इज ए कांस्टेंट, और दिस इज ए DL क्या कौन सा एलिमेंट है, दिस इज द PQ के लिए लिया है, कौन सा PQ, बाकी सभी PQ का लेंथ कितना हो गया, टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सो दिस इक्वल टू, ये साइड हमने कितना कंसिडर किया था A, तो मैं इसका ये लेंथ लिख रहा हूँ, ये पुट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसका बाद अब इसका राइट हैंड साइड देखते हैं, बायट-शोर्ट लॉ का क्या होता है, बायट-शोर्ट लॉ का हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, B dot DL equal to μ0 times the total current। अब यहाँ कितना नंबर ऑफ लूप्स, so n is the total number of turns, क्या आएगा ये, these are the total number of turns, इसके अंदर सॉलिड में कितना टर्न्स है n, एंड सो दिस इक्वल टू, तो ये जो लेंथ A है, यहाँ से PQ का लेंथ कितना है A, तो ये लेंथ में कितना टर्न्स हो गए, तो
तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ छोटा n मल्टीप्लाई बाई ए, n इक्वल टू टोटल, मतलब दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर में अगर 2 टर्न है तो 10 सेंटीमीटर में कितना होगा, 10, 10 इज ए लेंथ एंड दिस नंबर ऑफ टर्न्स इन ए पर यूनिट लेंथ। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मी जीरो आई इक्वल टू मी जीरो नंबर ऑफ टर्न्स कितना n इंटू ए इंटू क्या हो गया आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक और दो को कंपेयर करेंगे, एक और दो को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा, लिख रहा हूँ मैं इसे, b डॉट डी एल इक्वल टू क्या आया था, b इंटू ए आया था और इक्वल टू मी जीरो आई का वैल्यू ये आ गया मी जीरो n इंटू आई और ये रह गया। तो ये गेट कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा ये, और मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको, तो ये जो वैल्यू है कौन सा, इसका वैल्यू क्या है, ये ए, तो ये इसके तहत कैंसिल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिनॉइड का म्यू जीरो टाइम्स n इंटू आई हो गया। सो आसान है ये, हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग सॉलिनॉइड। तो कितना सॉलिनॉइड के वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो फिर से देखो एक बार, कंसिडर ए सॉलिनॉइड के हेलिकल स्प्रिंग हैविंग ए लेंथ और this a number of turns, it is wounded of a wire, it is very closely it form the solenoid। तो एम्पियर सर्किटल लॉ, इसमें से करंट कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है, कैसे जा रहा है, दिस इज द क्लॉकवाइज। सो एस पोल यहाँ फॉर्म हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा एन पोल फॉर्म हो गया। ओके, देन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी, ये बताया। उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है तो हमें एक लूप कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ लूप फॉर द सॉलिनॉइड, इट्स स्ट्रेट सॉलिनॉइड, सो मैंने इसको लिया, क्या लूप लिया, दिस इज रेक्टेंगुलर लूप कंसिडर किया, दिस इज द रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस। उसका लेंथ कितना है ए, ब्रेड्थ कितना है छोटा बी स्मॉल बी, और इसके n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है n, और आई करंट पासेस थ्रू इट। देन apply the ampere circuitous law, line integration over the closed loop BDL equal to, तो ये यहाँ क्लोज लूप के लिए स्प्लिट किया, ये लेंथ PQ के लिए इंटीग्रेशन, फिर QR के लिए, उसके बाद RS के लिए, उसके बाद SP के लिए, और फिर in a solenoid magnetic field outside it is a 0 और at the end it is a half। तो magnetic field inside the solenoid, यहाँ लिखना रह गया solenoid, inside the solenoid magnetic field is a uniform। तो ये फिर से मैंने दोबारा ये टर्म यहाँ लिखा। सो PQ में क्या है, दिस इज द लेंथ एलिमेंट, ये DL और मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम डायरेक्शन, सो दिस इज B डॉट DL इक्वल टू B DL cos ऑफ थीटा आएगा, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, और थीटा इक्वल टू 0। फिर दूसरा QR में क्या है, ये हो गया DL एलिमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो एंगल इज ए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ क्या है आउटसाइड है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 0, और यहाँ फिर 90 डिग्री एंगल होता, क्योंकि दिस द DL, ये DL और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो cos 0 इज ए 0, cos 90 0, फिर ये 0, ये भी क्या टर्म होगा 0, क्या बचा फिर इंटीग्रेशन PQ B DL, B क्या है कांस्टेंट है, इनसाइड जैसे यहाँ लिखा है यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, सो B बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ए DL फॉर द PQ। DL का ये मतलब क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन टोटल PQ का लेंथ कितना है A, सो मैंने यहाँ लिखा B इंटू ये। उसके बाद मैंने बाइट शॉर्ट लॉ दोबारा लिखा, तो ये पार्ट हमने
हाँ, तो ये पार्ट हमने पढ़ा था, फिर से देखते हैं प्रीवियस स्लाइड में आता है क्या। तो ये इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू, ये क्या किया था, पी क्यू के लिए हमने किया था बी डी एल। सो दिस इक्वल टू, यहाँ बी कांस्टेंट है तो बी यूनिफॉर्म है कांस्टेंट, सो बी डी एल दिस इक्वल, लेंथ कितना है डी एल का टोटल लेंथ, एक पी क्यू का, तो बी इंटू ये, तो एम्पियर सर्किटल लॉ, सो बी डी एल इक्वल टू मी जीरो इंटू आई। अब ये पार्ट का वैल्यू इतना आ गया, वो लिखा। अभी इसका लिखेंगे बी ए, इसका अलग ये पार्ट का, और म्यू, म्यू इज द टोटल करंट, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, और ये, और मैं इसमें कैपिटल या नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई, तो एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, दिस इज द स्मॉल एन इंटू ए, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रखा। सो बी ए इक्वल टू मी जीरो एन इंटू ये, कैपिटल एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ इंटू आई, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द inside the solenoid equal to mu zero times n into I. So this is the expression for this solenoid. Or this magnetic field just outside it is will be a half both the ends of the solenoid mu zero n into I, हाफ रहता है। कभी न्यूमेरिकल में पूछते हैं तो ये बात भी ध्यान रखना है, हाफ होता है और आउटसाइड क्या होता है, जीरो होता है। तो वो ये नेक्स्ट स्लाइड में यही बताया है, यही कैलकुलेशन इसी में भी है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टोराइड। सो व्हाट इज द टोराइड, टोराइड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टोराइड इज ए long solenoid, this solenoid is a made in the form of ring। अगर ये solenoid है तो इसको रिंग के फॉर्म में solenoid को अरेंज किया, this is in the form of ring, so which form the this known as a toroid। और ये टोराइड में अगर ये देखेंगे तो इसमें आउटसाइड द solenoid में भी देखा B इक्वल टू क्या रहता है, जीरो, और इनसाइड भी B इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें अगर लूप अगर हम यहाँ कंसिडर करेंगे अंदर तो यहाँ कोई करंट नहीं पास हो रहा है, इसका मतलब यहाँ करंट कैसा पास हो रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर, इस तरीके से ये करंट पास हो रहा है। कैसे, तो यहाँ से करंट आई एंटर करेगा, यहाँ से ये लूप से करंट जा रहा है खाली इस तरीके से, और अंदर करंट नहीं है तो B इक्वल टू जीरो, बाहर भी B क्या आएगा, जीरो, and only magnetic field is exist in between this toroid, ये अंदर के तरफ only magnetic field is exist। तो यहाँ बायोट-सेवर्ट लॉ अप्लाई करना है तो हमें क्या करना है, क्लोज लूप चाहिए, तो यहाँ एक लूप कंसिडर किया, दिस इज द क्लोज लूप, ये जो लूप दिख रहा है अंदर क्या एक लूप कंसिडर किया, और ये लूप का डीएल दिस स्मॉल एलिमेंट इज टेकन, दिस इज द डीएल स्मॉल एलिमेंट टेकन, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोराइड कैसा होता है, अगर इसको सॉलिनॉइड देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, गोल घुमाएंगे तो इस पॉइंट पर क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन, सो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, इन द सेम डायरेक्शन। सो दिस इज टेकन एज एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल को ओवर द क्लोज लूप, dBdl equal to mu zero times the total current I passes through it, और this is a current through the particular loop के लिए I naught, so this is the angle between them, dl and B equal to zero, so this equal to और ये जो लूप लिया, ये लूप कितना कैसा है, सर्कुलर है, सो टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल कितना है, सरकमफरेंस, सो B इंटू dr, ये पार्ट हो गया इसका। अब ये पार्ट, ये जो पार्ट है इसको यहाँ लिया, सो म्यू जीरो एज इट इज,
So what is the total number of turns per unit length? N is the number of turns per unit length. कितना है? N into total length कितना है? 2 pi r circumference. So this equal to ये दोनों को कंपेयर करेंगे. पहले कितना आया था? This equal to B मैग्नेटिक फील्ड इंटू 2 pi r और इक्वल टू μ0. ये इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये दोनों का वैल्यू इसमें रखा तो ये आएगा μ0 कितना आता है? n इंटू लेंथ कितना? 2 pi r. ये हो गया टोटल टर्न्स इंटू दिस इज द I. तो 2 pi r गेट कैंसिल. सो B इज इक्वल टू μ0 n इंटू I. सो सोलिनॉइड और टोरॉइड दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या आता है? सेम आता है. सो यहाँ n के लिए कंफ्यूज मत करना क्योंकि n क्या होता है? छोटा n है तो छोटा n क्या होता है? n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू ए. हमने इस किसके लिए लिया था? सोलिनॉइड के लिए लिया था. तो n इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल N डिवाइड बाई ए आएगा. ये क्या है? लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड इनसाइड. दिस इज ए इज ए लेंथ ऑफ सोलिनॉइड इसका. और ये इस केस में n क्या है? तो इसे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू n इंटू 2 pi r. ये लेंथ है इसका और ये इसका लेंथ है. तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना कि जब न्यूमेरिकल आता है तो अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरीके से. तो इसके लिए कंफ्यूज मत हो जाओ. तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनॉइड एंड टोरॉइड इज द सेम वैल्यू बट the meaning of this is a small n. The meaning of this n is a different. तो दोनों का this is for the टोरॉइड, ये टोरॉइड के लिए और ये सोलिनॉइड के लिए. दोनों में गड़बड़ नहीं करना. तो ये इतना ही. उसके बाद ये लेसन. तो आज के यूनिट में हमने क्या पढ़ा? एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा और उसके दो एप्लीकेशन पर पढ़ा. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलिनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टोरॉइडल सोलिनॉइड या टोरॉइड. तो ये दोनों सिंपल एप्लीकेशन है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल एक वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. और तब के लिए पढ़ाई करते रहो. अपने कॉपी में ये नोट्स अच्छी तरह से बनाओ. और कुछ दिक्कत है, अगर तुम किस तरीके से टीचिंग चाहते हैं, दिस इज़ द गुड मेथड और ब्लैक बोर्ड का अच्छा. तो दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है थोड़ा कमेंट्स में भेजेंगे तो मुझे ये समझ में आएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं. तो उसके लिए हमने ये अरेंजमेंट किया. राइटिंग पैड वगैरह परचेस करके उसके ऊपर वह लिख रहा हूँ कंफर्टेबली. और ये मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि दिखने में ये बोर्ड या मोबाइल के ऊपर अच्छी तरह से तुम्हें दिखाई देगा. इसीलिए मैंने ये मेथड सेलेक्ट किया. कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख देना अपने ग्रुप के ऊपर. तब के लिए थैंक यू. अपना कॉपी में लिखो ये अच्छी तरह से और नोट्स बनाओ. और न्यूमेरिकल पार्ट हम डिस्कस करेंगे. और ये पार्ट के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है. ओके, थैंक यू. हैव ए गुड डे.